Good morning, students. Hope and wish you all are safe. Today we will just discuss the previous chapter that are in the basic of computer operation that we discussed in the previous session. So today we will discuss the rest of the topics, rest of the things of that chapter, basic of computer operation. So in this class we will discuss on the rest topic of the basic of computer operations. So our first topic is desktop icon. So desktop, what is a desktop icon? Just we will discuss in this like a screen. So the first one, desktop icon. So the small like a pictorial form. The icon is just look like a pictorial form. It's a small picture represented in a program. That means when you see the icons, then you just understand which type of files that are appear into the आइकॉन्स जो कौन सा वो आइकॉन देख के हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि वो फाइल जो है किस टाइप का है, कौन सा फाइल है, ये हम लोग इजीली पता कर सकते हैं. लाइक माय कंप्यूटर आइकॉन, कंप्यूटर देख के हम लोग बता सकते हैं कि दिस इज द माय कंप्यूटर आइकॉन. रिसाइकल बिन, इट्स जस्ट लुक लाइक अ डस्टबिन. सो रिसाइकल बिन को देख के हम लोग बता सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ रिसाइकल बिन. वी जस्ट इजीली अंडरस्टैंड टू सी द आइकॉन्स. There is some different types of icon like jpg icons, dock icons, flash icons. So these are some different types of icon that are easily understand that which type of matter into this particular icon or this particular file also. Next thing is hiding the desktop icon. So how to hide the desktop icon, we have to just understand about that. There is some step right click on the blank area of the desktop. There is an option of view. Into the context menu, a view option will be appear. Then just move your mouse pointer to the view option. Then in the right side of the view there is a one more multiple choice option menu, and that choice option menu has contained the show desktop icon. In the downside of the multiple choice menu, there is option of show desktop or hide desktop. There when you just tick out the desktop icon, then it will be just hide the icons, and when you just again tick out that icon, then the icon will be show. जब आपका टिक आउट उस पर हो जाएगा तो आपका आइकॉन शो हो जाएगा. अब वहाँ पे अगर आप अनटिक कर देते हैं देन द icon will be hide. So this is the process to show and hide the icons into the desktop. Into the context menu there is a one more thing like a sort by. So what about the sort by? Sort by is used to generally arrangement of the files and folders or the icons also. सो इसका क्या होता है, इसके थ्रू हम लोग सॉर्ट बाई के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आइकॉन्स होते हैं, फाइल्स होते हैं या फोल्डर्स होते हैं, हम लोग उसे अरेंज कर सकते हैं. सो अरेंज कैसे कर सकते हैं? वी नो अबाउट दैट सॉर्टिंग. दैट मीन्स टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग. In the previous class we will just learn and we discuss about the sorting. There is a two types of sorting in the ascending order or descending order. You have to just sorted the data into the ascending order or the descending order. The ascending और descending order में आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं, वो सॉर्टिंग कर सकते हैं. सो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कुछ एक हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक नेम, साइज, item type and date modifier. These are some options when you just go to the sort. When you just move your mouse pointer into the sort option, then multiple choice options will be appear and that contains the name, size, item type and the date modifier. That means these are some options. You can just choose one of them and your file and folder or the icons will be arranged on that particular things, that particular option also. Like a name, it arranges the alphabetical order. When you select the name, then ये जो क्या करता है, ये alphabetical order में arrange कर देता है. If you just choose the size, then it will be just arrange the files into the size option. Like अगर size वहाँ बड़ा होता है then it will appear to the first and the rest of the thing is lower. That is the descending order. And if you select the ascending order, then there is some सबसे स्मॉल, सबसे छोटा जो साइज का होगा फाइल वो सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे उससे बड़ा, फिर उससे नीचे उससे बड़ा. सो दीज आर जस्ट डिपेंड अपॉन द स्टोरेज. लाइक आइटम टाइप टू अरेंज आइकॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी. जो भी कैटेगरी का होगा वो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस फाइल को अरेंज कर देगा. लाइक अ डेट मोडिफाइड, दैट मीन्स कि इट ऑल अरेंज थ्रू द डेट ऑर्डर. सबसे पहले जो डेट होगा अभी जो वो सबसे लास्ट में शो करेगा, सबसे ऊपर जो है, मतलब अगर ये डेट वाइज आपका डेटा शो करता है. तो दीज आर सम फीचर्स टू जस्ट अरेंज द डेटा इनटू द डेट वाइज.
Now there is some like in this context menu there is a refresh option, paste option, paste shortcut. So these are some different types of options. Like a refresh is just refresh your computer screen or the folder or the files also. वो फाइल्स को एक बार रिफ्रेश कर देता है. रिफ्रेश मतलब आई थिंक आप लोग सब समझते हो कि अगर आप बोर्ड हो रहे हो तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, दैट मीन्स कि आप थोड़ा सा इजी महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो. सो दैट इज़ अ रिफ्रेशमेंट. सो कंप्यूटर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद अगर उसे रिफ्रेश कर देते हैं तो वो थोड़ा सा सही हो जाता है, अपने आप को रिफ्रेश महसूस करता है. नाउ पेस्ट, व्हेन यू जस्ट कॉपी सम डेटा देन यू कैन जस्ट पेस्ट इट. मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर कॉपी करते हो तो आप राइट क्लिक करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो. पेस्ट शॉर्टकट, अगर आपने कोई शॉर्टकट कॉपी किया है तो यू कैन जस्ट पेस्ट द शॉर्टकट ऑल्सो. सो दीज आर देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस लाइक undo, दैट मीन्स यू नो go to the just previous action and shared folder synchronize, that means you can just synchronize the data. Synchronize मतलब छोटा कर सकते हो, synchronize कर सकते हो. New, that means through the new option you just create the new document, new folder, new document. That means there are different types of document. If you go to the new option, then different types of multiple choice options will be appear, and that contains the new folder, new document, new text document, new word document, or etc. So you can just choose according to your need if you want to just create a new one. Now screen resolution. So screen resolution, that means it set the resolution of the screen, that means it's the size of the screen. Gadget, that means it has a different types of gadget like a calculator, like a screen, just a CPU monitor. So these are some gadgets. Personalization, you know about that. Through the personalization we can set the desktop backgrounds also. So these are some different types of like context menu that are appeared when you right click on the desktop. So हम लोग सब चीज़ों के बारे में देख लिया हमने. आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. नाउ स्टार्टिंग और ओपनिंग अ प्रोग्राम. हम लोग प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे ओपन करते हैं. सो वी नीड टू जस्ट डिस्कस अबाउट दैट. हम लोग प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं. बट मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रखा है क्लास में. आई होप कि बहुत लोग जानते हो इसके बारे में, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो जस्ट देयर इज़ अ वन process and there is a one different process. There is a 2 and 3 process. So we need to just discuss. The basic process is like when you go to the start button, there is a all program option. When you click on the all program option, then a list will be appear into your screen and into the like a start panel. Start panel में list appear होता है, and there is a different types of programs that are installed into your computer. तो आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स का लिस्ट जो है आपके स्क्रीन पे आ जाता है. जो स्टार्ट पैनल में है उसका लिस्ट पे स्टार्ट पैनल में आ जाता है. यू कैन जस्ट चूज द सॉफ्टवेयर व्हिच यू वांट टू ओपन एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक आउट दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. अगर आप जिसे ओपन करना चाहते हैं आप उस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपके स्क्रीन पे ओपन होके आ जाएगा. And one another process, like into the start panel also there is a search bar. You have to just click on the search bar and write the option that you want to search, that you want to open also. So write the software name, write the application name that you want to open. When you just type the name, then the option will be appeared into the left pan of the start panel. So अगर आपको उस अपने अकॉर्डिंग जो चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाता है ऊपर में, तो देन यू कैन जस्ट क्लिक आउट ऑन द पर्टिकुलर ऑप्शन. आप उस पर क्लिक कर दोगे, देन वो जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा. सो दीज आर द 2 स्टेप्स वी डिस्कस्ड इनटू दिस टॉपिक. Now using taskbar. So what about the taskbar? Into the taskbar we will discuss in previous classes. Like into the taskbar there is a different types of option like start panel. There is a quick launch icon also, and in the right side of the panel there is a notification area also. वहाँ पे notification area भी होता है, quick launch icon भी होता है, and वहाँ पे क्या होता है आपका जो start बटन होता है वो start बटन के थ्रू आप बाकी के प्रोग्राम्स जो है वो ओपन कर सकते हो. Now when you install the some program, like we discuss about the some shortcuts of the program. When you just install the programs, when you just install any types of software, then shortcut will be appear into your screen, desktop screen. जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपके स्क्रीन पे, आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आइकॉन के थ्रू अपीयर हो जाता है. एंड व्हेन यू जस्ट
open that type of software, so you have to just double click on that shortcut icons. You have to just double click on that, and software will be open into your screen. And the one another thing into the just like a title bar, we have to discuss in the previous, like a title bar is the upper side of the screen, upper side of the software. So into the this one is a title bar. Title bar contains the in the right side of the panel there is a one like a program bar. It's like contain then minimize, maximize एंड क्लोज. वहाँ पे तीन जो बटन होते हैं जो कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज होता है. ठीक है, वो बटन जो है वो बटन के थ्रू क्या क्या चीज़ें होती है वो हम लोग देखें. सो मिनिमाइज बटन इज जनरली यूज टू मिनिमाइज द प्रोग्राम. जो मिनिमाइज बटन होता है उसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं. नाउ द मैक्सिमाइज, सो मैक्सिमाइज बटन इज जनरली यूज टू मिनिमाइज दैट प्रोग्राम, टू मैक्सिमाइज दैट मिनिमाइज प्रोग्राम. जो मैक्सिमाइज बटन होता है, जो भी आपने प्रोग्राम को मिनिमाइज कर रखा है तो उसको वो क्या करता है, फिर से मैक्सिमाइज या रीस्टोर कर देता है. एंड देयर इज अ वन मोर ऑप्शन, क्लोज बटन. क्लोज बटन यू नो अबाउट दैट. Close button is generally used to close your program. Now the next point is keyboard operation, mouse and keyboard operation. So in this to the next screen we just discuss about the operation of keyboard and mouse, which type of operation that are performed by the keyboard, which type of functions that are performed by the keyboard and mouse also. So in the next screen we will discuss about that particular topic. First is using keyboard. कीबोर्ड को जो यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या बटन्स होते हैं, कौन कौन से बटन का क्या यूज़ है, हम लोग वो यहाँ पे देखते हैं. सो फर्स्ट दैट इज़ अ फंक्शन की. इनटू द अपर साइड ऑफ द कीबोर्ड देयर इज़ अ फंक्शन की. जो आपके कीबोर्ड के सबसे ऊपर में होता है वो होता है फंक्शन की, लाइक F1 to F12. दीज आर द फंक्शन की एंड दैट आर यूज टू परफॉर्म द different types of specific operations. Like F1 is just open the help program, like F8 is for open the operating system into the safe mode. So these are some different types of function key, like there is some like F12, F10. So these are the these are used for the booting purpose also. So ये functions की का ये सारे यूज़ होते हैं. Now next one is enter key. Enter key is generally used to move your cursor to the next line और द बिगिनिंग ऑफ द लाइन. ये जो क्या करता है, वेन वी जस्ट अगर हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं तो वो जो है हमारे डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट लाइन में चला जाता है. एंड दैट इज ऑल्सो यूज टू ओपन सम प्रोग्राम्स ऑल्सो. वेन यू जस्ट सेलेक्ट द प्रोग्राम एंड द प्रेस इंटर की, then it will be helpful to open the programs also. Now the next one is the punctuation keys. Punctuation keys like colon, semicolon, question mark, single question mark, like a single apostrophe marks, double apostrophe marks. So these are the some used for punctuation keys. And navigation key is the four key that are generally navigation key, into the keyboard there are 4 arrow, and that arrows is used to navigate your mouse or into the like a modern keyboard. That particular navigation keys contains the home, end, page up, page down और etc. So ये जो navigation की होते हैं ये page up, page end भी कंटेंट किए होते हैं, क्योंकि page up, page end, home और end जो है ये सारे की को भी हम लोग navigation की बोलते हैं. सो आज के डेट में जो नया कीबोर्ड है वो मैक्सिमम कीबोर्ड जो वो 4 एरो वाला की होता है वो ये चारों फंक्शंस को कंटेंट किए हुए रहता है. सो ये इन सारे ऑप्शंस को हम लोग नेविगेशन कीज़ बोलते हैं. नाउ स्पेशल कीज़ दैट मीन्स देयर इज सम डिलीट कीज़, इंसर्ट कीज़, बैक स्पेस कीज़. सो दीज कीज़ आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, लाइक डिलीट एंड key is used for the deleting some things, and insert to insert some data, and the backspace is also used for the delete. And there is a one more thing, like a delete and backspace both are used for deleting the deleting word also, or deleting the folders also. So what is the use into the document of delete and backspace key? हम लोग backspace की और delete की को क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? बैकस्पेस से भी डिलीट होता है, डिलीट की से भी डिलीट होता है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सो जनरली डिलीट की इज यूज टू डिलीट द
text into the right side of the cursor, that is a delete key, and backspace key, that is used to remove the character, remove the text into the left side of the cursor. So these are the main differences of the like a delete key or the backspace key. Now windows key generally open a windows or to start menu. विंडोज़ की से हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग जो विंडोज़ है उसे ओपन करते हैं, स्टार्ट मेनू ओपन करते हैं. Now the next topic is using mouse. So into the mouse there are different types of actions performed by the mouse. Mouse के through बहुत सारे actions perform होते हैं. क्या क्या perform होते हैं? There is a different types of options like a single click, double click, drag, right click or scroll also. So these are some functions that are performed by the mouse. So one by one we will discuss about that particular actions of the mouse. So single click, generally single click का क्या use होता है? सिंगल क्लिक से हम लोग करते क्या हैं? सो सिंगल क्लिक दैट मीन्स इट्स अ लेफ्ट क्लिक. सो वी नो अबाउट दैट इनटू द माउस क्लिक देयर इज अ 3 click option. Into the modern mouses there is a 2 click option and one is scroll bar. हम लोग सब लोग देखते हैं जो अभी हम लोग माउस यूज़ कर रहे हैं वो उसमें 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल बार होता है. बट प्रीवियस वर्जन की बात करें जो पहले के माउसेज आते थे उनमें 3 बटन होता था और एक स्क्रॉल के लिए जो हमारे जो माउस के बेस में होता है एक स्क्रॉलर लगा हुआ होता था. अभी जो स्क्रॉल है वो लाइट बीम के थ्रू काम करता है. बट पहले के माउस में शायद कुछ लोगों ने देखा हो तो पहले के माउस में एक गोला लगा हुआ होता था, गोल सर्किल टाइप का, एक बॉल टाइप का एक छोटा सा जो गोला है वो हमारे माउस में लगा हुआ होता था. और जैसे जैसे हम उसे रोल करते थे तो हमारा माउस का जो पॉइंटर है वैसे वैसे मूव करता था. बट मॉडर्न माउस में क्या है कि अब वो काम लाइट बीम के थ्रू होता है. हमारे माउस के नीचे एक लाइट जलती हुई होती है, लाइट बीम जल रहा होता है और उस बीम के थ्रू ही जो हमारा कंप्यूटर है वो सेंसिंग करता है, जस्ट सेंसिंग टेक्नोलॉजी. सो वो सेंस करता है और माउस को जिधर भी हम मूव करना चाहते हैं उधर मूव करता है. तो चलो अब बात करते हैं सिंगल क्लिक की. सो लेफ्ट क्लिक को ही सिंगल क्लिक बोलते हैं एंड जनरली लेफ्ट क्लिक इज़ यूज टू सेलेक्ट एनी ऑफ द आइटम इनटू योर कंप्यूटर स्क्रीन. जो सिंगल क्लिक है या लेफ्ट क्लिक जिसे बोलते हैं उसके थ्रू हम लोग किसी भी आइकॉन्स को, फोल्डर को, फाइल को सेलेक्ट करने के काम आता है. एंड जनरली इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द ड्रैगिंग पर्पस बट वी डिस्कस इन द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट टॉपिक. लाइक अब सिंगल क्लिक समझ गए सब लोग. नाउ इट्स डबल क्लिक. सो डबल क्लिक इज जनरली यूज टू ओपन द open something also, open like a file, like a folder, like a icons also. So अगर किसी भी चीज़ को हमें open करना है so that time we just double click on that particular drive or file or folder, so that file, drive, folder will be open into your screen. So ये है double click. and double click that means कि you have to double time left click. जो लेफ्ट क्लिक माउस का होता है जब आप माउस को पकड़ोगे तो आप देख रहे हो माउस को कैसे पकड़ा जाता है, पिक्चर में दिख रहा है. अपने राइट हैंड से माउस को पकड़ना है, ठीक है. और जो आपका सबसे बड़ी वाली, सबसे जो ये अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है वो आपके लेफ्ट की पे रहता है और राइट की पे जस्ट उसके बगल वाली जो आपके हाथ की सबसे बड़ी वाली उंगली है वो राइट क्लिक वाले बटन पे रहती है, ठीक है. तो इस तरह माउस को पकड़ना है जो आपको दिख रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो. सो जो आपका लेफ़्ट उंगली होता है, आपके जो आप लेफ़्ट साइड वाले उंगली को ही लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं और आपके राइट साइड में जो उंगली होती है उसे हम लोग उसके थ्रू हम लोग राइट क्लिक करते हैं. सो समझ गए. नाउ ड्रैगिंग क्या होता है, ड्रैगिंग के थ्रू हम लोग क्या क्या करते हैं. सो ड्रैगिंग इज जनरली यूज टू ड्रैग समथिंग. ड्रैग दैट मीन्स घसीटना. सो ड्रैग करके दैट मीन्स कि यहाँ से घसीटो और वहाँ पटक दो, दैट इज़ अ ड्रैगिंग मेथड. सो इस ड्रैगिंग मेथड में भी हम लोग यही करते हैं. सो व्हेन वी जस्ट मूव एनी टाइप्स ऑफ फोल्डर और अ फाइल और आइकॉन्स, व्हेन वी जस्ट मूव द फाइल इनटू द वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, दैट टाइम वी यूज़ द ड्रैगिंग मेथड ऑल्सो. यानी एक जगह से पकड़ना है और उसे जहाँ भी रखना चाहते हो आप वहाँ पे उसे रख सकते हो. अब कैसे हम इसे पकड़ेंगे, कैसे हम वहाँ छोड़ेंगे, इसको हम लोग देखते हैं. सो फर्स्ट व्हेन यू जस्ट when you want to just move the one file that are in a desktop, you have to just move the file into the like right bottom corner of the screen. So अगर आपका एक फाइल है जो आपके स्क्रीन के ऊपर में है और उसे आप राइट बॉटम कॉर्नर पे रखना चाहते हो, सो दैट टाइम आप क्या करोगे. सो जस्ट गो टू द फाइल, मूव योर माउस कर्सर इनटू दैट फाइल एंड सेलेक्ट द फाइल ऑल्सो. वो फाइल को सेलेक्ट कर लेना है. सिलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग, मैंने पहले बता रखा है.
सिंगल क्लिक जो होता है, लेफ्ट क्लिक के थ्रू हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसी भी फाइल को. सो यू हैव टू जस्ट लेफ्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर और आइकॉन ऑल्सो. सो जब आप लेफ्ट क्लिक कर दोगे देन अपने माउस के फिर से लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है. ठीक है, क्या करना है, आपको लेफ्ट माउस बटन के की को, लेफ्ट की जो सिंगल क्लिक होता है उसे होल्ड कर देना है, उस पे माउस रख के, यानी जिस भी फाइल को आप मूव करना चाहते हो, आइकॉन को मूव करना चाहते हो, उस पे अपने माउस के कर्सर को रख के और लेफ्ट बटन को होल्ड कर देना है, यानी दबाए रखना है. और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप अपने माउस के पॉइंटर को वहाँ ना पहुँचा दो जहाँ पे आप उस फाइल को रखना चाहते हो. सो वहाँ से आप जब उसे लेफ़्ट क्लिक दबा के दूसरे जगह की तरफ खींचोगे तो वो जो फाइल है वो वहाँ से उठ के जहाँ आप रखना चाहते हो वहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि जहाँ आपको रखना है वहाँ पे आप जाके अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को छोड़ देते हो तो वो फाइल वहाँ से उठ के दूसरी जगह जहाँ आप रखना चाह रहे हो वहाँ पे चला जा रहा है. सो इसे हम लोग बोलते हैं ड्रैगिंग मेथड. सो नाउ राइट क्लिक, एंड राइट क्लिक आई थिंक यू ऑल नो अबाउट दैट. थ्रू द राइट क्लिक वी विल जस्ट ओपन द कॉन्टेक्स्ट मेनू. राइट क्लिक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करते हैं. व्हेन यू जस्ट राइट क्लिक ऑन द like a file or a folder, then a context menu will be appear that contains a different types of options like a view, refresh, like a copy, cut, paste. So these are some different types of options that are appear into the context menu while you are just right click on the particular file or a folder or icon. तो जब आप राइट क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर होता है और उस कॉन्टेक्स्ट मेनू के थ्रू बहुत सारे ऑप्शंस अपीयर होते हैं जो पर्टिकुलर उस फाइल से रिलेटेड होते हैं जिसे आपने सेलेक्ट कर रखा है. सो आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कन्फ्यूज़न होगा तो सब लोग पूछ लेंगे. स्क्रॉल दैट मीन्स कि यू हैव टू जस्ट अप एंड डाउन योर पेज. आप जो आपके अपने पेज है उसको आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो थ्रू द स्क्रॉल बार. देयर इज़ अ लाइक वन रोलर इनटू द माउस. माउस में क्या होता है, एक रोलर लगा हुआ होता है. यू हैव टू जस्ट scroll your page while when you just scrolling, just you have to scroll up and down your scroll bar, then your page will be just move up and down. So scroll wheel is generally used to move up and down the page. Now the chapter is over. There is one more thing, not it's a recap option. So into the recap option there is some important points you all know about that we will discuss in the previous classes. That means each and every classes we will discuss in the for the recap option. So recap is generally used for there is some important points. So you need to just write that points into your homework copy. And after that there is a assessment time. So into the assessment time you need to just write the question answer and objectives also. There is some objective like a ABC. There is a 3 questions like a is a MCQ, B is a true and false, and C is a question answer. So you need to write the question answer into your homework copy. सबको अपने homework copy में जो है question answer उसे लिख लेना है. और जो भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट करोगे. कांटेक्ट करने के लिए सबको पता ही है क्या करना है कांटेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग दूसरे टॉपिक को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है क्या कहता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेट एंड एप्लीकेशंस. सो इंटरनेट और एप्लीकेशन क्या होता है हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इंटरनेट होता क्या है. वैसे बेसिकली सब लोग जानते हो कि इंटरनेट क्या चीज़ है, एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे हम लोग उसे अपने सिस्टम में डालते हैं, अपने मोबाइल में डालते हैं और कैसे उसे जनरली हम लोग यूज़ करते हैं. सो आई होप कि बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ द इंटरनेट एंड देयर एप्लीकेशंस आल्सो. सो नाउ अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ये टॉपिक जो कि है इंटरनेट और एप्लीकेशंस. Internet is generally a worldwide network that are just initially started into the 1969 by the US Defense Department. That was named ARPANET. जो सबसे पहले जो हमारा इंटरनेट आया उसे ARPANET बोलते हैं. The full form of the ARPANET that is Advanced Research Project Agency Network. That is a full form of ARPANET जो कि 1969 में अनाउंस हुआ, 1969 में आया मार्केट में, जो कि डिफेंस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था.
But the actual growth of the internet that are started in 1990s, 1990 के बाद जो है, 90 से कह सकते हैं, 90 से जो है इंटरनेट का मोस्टली लोग यूज़ करने लगे, लोग जानने लगे, और मार्केट में कॉमर्शियल यूज़ के लिए ये इंटरनेट लाइक स्टार्ट हो गया. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द यूजिंग ऑफ इंटरनेट. हम लोग इंटरनेट को यूज़ कैसे करते हैं. सो इंटरनेट में हमने देखा सबसे पहले इट्स अ कनेक्टिविटी दैट आर कनेक्टेड टू द WWW. सो वर्ल्ड वाइड वेब. आई होप सब लोग जानते होंगे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में. सो वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टिविटी का एक जरिया है. सो अब देखते हैं हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते क्या क्या है, होता क्या क्या है इंटरनेट से. आज के डेट में आई थिंक सब लोग जान रहे हैं कि इंटरनेट इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल, बिकॉज all types of entertainment purpose, all types of like searching something, all types of chatting something. That means ki your daily life needed is into the internet. When you want something that just you can search to the internet, that are available into the internet. So इंटरनेट आज के डेट में बहुत बड़ा जरिया बन गया है. आपके हर चीज़ों में इंटरनेट का बहुत बड़ा अहम भूमिका है. सो कैसे हम लोग देखते हैं. So there is a entertainment that means ki you can just download the games, download and play the games. You can just watch the movies, listen the songs. So entertainment purpose that are used to the internet purpose, sorry, entertainment purpose के लिए भी जो है इंटरनेट यूज आता है. Now online shopping, you know about that. Online shopping is much more reliable than the like physical marketing. You know about that. ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हम लोग घर बैठे सामान को इजीली पा सकते हैं. जहाँ हमें जस्ट क्या करना पड़ता है, ऑर्डर करना पड़ता है, आइटम्स को चेक करना पड़ता है एंड जस्ट उसे ऑर्डर देते हैं. देयर इज़ सम मोर लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील्स. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग्स. मिंत्रा. सो ये सारे एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग के. यू हैव टू जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर एप्स और द साइट एंड यू जस्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर नीड. वहाँ से आप ऑर्डर करते हो एंड दैट पर्टिकुलर थिंग्स विल बी डिलीवर इन टू योर डोर स्टेप. Now searching something, you need to, you have to just search something like when you search some data, when you search some educational things that are available into the internet. वहाँ पे हर चीज़ें मौजूद है, आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो. सारी चीज़ें आपके नेट पे, आपके मोबाइल पे, आपके ब्राउज़र पे मौजूद होंगी. नाउ ऑनलाइन चैटिंग, these are the way to just communicate with your parents, with your parents, friends, families, etc. सो ऑनलाइन चैटिंग भी एक जरिया है जिसके थ्रू आप लोग जस्ट शेयरिंग योर मैसेजेस, शेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स. एंड द वन मोर थिंग दैट इज ईमेल इज ऑल्सो यूज टू चैटिंग पर्पस एंड यू कैन जस्ट शेयर योर डाटा, यू कैन जस्ट सेंड द mails, you can just send the documents to different peoples, your family, friends or the offices purpose also. E-card that is an internet card. That means in the previous time we use the cards also. It's a greetings card. So but now a time we just use the e-card option to send the greetings, to your like a family, friends, जिसे भी आप greetings भेजना चाहते हो, like greetings like Diwali greetings, New Year greetings. So these are some types of greetings that are available into the internet, and there are some examples, some sites that just provide the e-cards like 123greetings.com, ecard.com. So there are some sites that are provide the e-greetings card. When you just go to that website, choose the which type of greetings you want, like birthday greetings, like Diwali greetings, like New Year greetings. So different types of greetings are there. So you have to just choose one of them, and then the particular things will be just there is a code. You can just copy the code and just go to the email. You can just email through that particular sites also. Now social networking. So there is some social networking site like Facebook, WhatsApp, Hangout, Gmail. So these are some social networking sites. You can use these sites to just communicate with your friends. You just share your feelings, your views in the publicly. You can just share your ideas, thoughts, interest, your mood also. So networking is a best way nowadays, best way to communicate with one another. Now video conferencing, you can use the video conferencing also. That means you can just connect with the another one live. It's RTC, sorry, real time connectivity. When you just video conference, you can just online. When you are online, then you can just face to face talking with your reliable one, with your family, with your friends, etc. Nowadays you just use the Zoom app. It's also RTC.
you can use the video conferencing through this app, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप उससे कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल थ्रू द इंटरनेट। सो ये भी इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। सो दीज आर सम यूजेज ऑफ इंटरनेट। इसे हम लोग इंटरनेट का यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ों में नेविगेशन पर्पज़ के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ सर्च करना है, मैंने पहले बता रखा है, सर्च के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें कहीं जाना है, किसी होटल सर्च करना है, ठीक है, कहीं जाने के लिए अगर कोई टूरिस्ट प्लेस देखना है, तो बहुत सारे पर्पज़ के लिए आज के डेट में नेविगेशन यूज़ होता है। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट इंटरनेट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट टर्म्स हैं, हम लोग उसके बारे में देखें। सो देयर आर सम वेबसाइट यू नो अबाउट दैट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है? जो कलेक्शन वेब पेजेस होता है, वेब पेजेस के कलेक्शन को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट लाइक अ गूगल, जीमेल, Myntra. These are some websites also. Web page is like pages of websites. तो वेब पेज होता है वो क्या होता है? वेबसाइट का पेज होता है। इन अ वेबसाइट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज। एक वेबसाइट में मल्टीपल टाइप्स के पेजेस होते हैं। जैसे तो आप लोग देखते हो कि कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पे होम दिखता है, कॉन्टेक्ट अस दिखता है, गैलरी दिखती है, व्यू दिखता है, यानी दैट मीन्स कि वहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के पेजेस दिखते हैं। तो वो पेजेस जो होते हैं वो पेजेस बनाए जाते हैं, यानी कि वेबसाइट में अलग अलग पेजेस को बना के पूरा का पूरा एक वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। सबसे पहले पेजेस बनते हैं, वेबसाइट के पेज बनने के बाद तब उसे कंबाइंड रूप में एक जगह एकत्रित किया जाता है और उसे कंबाइन करने के बाद तब जाके एक वेबसाइट का जो डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ही एक वेबसाइट का डेवलपमेंट पॉसिबल है। दैट मीन्स कि पार्ट बाय पार्ट सबसे पहले पेज बन के तब वो वेबसाइट बनता है। नाउ होम पेज इज अ फ्रंट पेज ऑफ द वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, ठीक है, मेन पेज जिसे बोलते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं होम पेज। जो सबसे पहले आप स्क्रीन ओपन करते हो, यानी वेबसाइट आप इंटर करते हो और इंटर मारने के बाद जो फ्रंट एंड जो पहला आपके सामने आता है स्क्रीन, उसे ही हम लोग बोलते हैं home page. Now the www is a world wide web, is the largest collection of information on the internet. ये www जो है ये कलेक्शन है इंटरनेट का। दैट मीन्स मैंने पहले बताया इंटरनेट इज अ कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड वाइड वेब। सो इस वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू मल्टीपल टाइप्स के जो वेबसाइट्स होते हैं वो इसी से कनेक्टेड होते हैं। बिना इसके हम लोग वेबसाइट को लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मेन कनेक्टिविटी है ये www ही है और उसी के थ्रू हम लोग बहुत सारे साइट से अटैच भी होते हैं। Now search engines, so these search engines have some different types of informations like Google is a search engine, Bing is a search engine. So there are different types of search engine. So you need to just go to the internet and type the search engine. So you have to just a lot of data like Google, Bing, Yahoo. These are some like search engines. Now इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कौन करता है, वो प्रोवाइडर कौन से हैं? मैंने पहले भी बताया था कभी एक बार क्लास में कि जितने भी हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऑलमोस्ट दे आर प्रोवाइडिंग द ISP. दे हैव अ इंटरनेट, दे हैव जैसे ISP सेंटर एंड थ्रू दिस दे कैन प्रोवाइड द इंटरनेट ऑल्सो। ISP दैट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जो ISP होते हैं ये सारे जो हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख रहे हो एयरटेल है, वोडा है, BSNL है, रिलायंस है जो कि अब जियो हो चुका है, वो है, MTNL है। सो दीज आर अ सर्विस प्रोवाइडर, दीज आर अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सारे क्या करते हैं, आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट इज वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? थ्रू द वेब ब्राउज़र वी कैन सर्च some websites also, like there are some web browser like Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Opera. These are some web browser that are used to search something, search some website, search some news, search some channels also. There are different types of browsers. So now how to open a web browser? हम लोग web browser को कैसे open करते हैं? So first we need to install that web browsers like Google Chrome, Mozilla, Internet Explorers. We need to install all of these. सो उसको ओपन जब हम इंस्टॉल हो गया तो हम लोग इसे ओपन कैसे करते हैं? तो फर्स्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जब हम इंस्टॉल करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को तो वो हमारे डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट आइकॉन बना देता है। सो वी नीड टू जस्ट डबल क्लिक ऑन द शॉर्टकट आइकॉन, देन द ब्राउज़र विल बी ओपन इनटू योर स्क्रीन। जब भी आप किसी चीज़ को डबल क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है। सो वैसे ही आपको ब्राउज़र ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करना होगा एंड वो ओपन हो जाएगा एंड दैट आर डिस्प्लेड इनटू द टास्क बार। अगर आप उसे टास्क बार में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक ऑन द
लाइक अ ब्राउज़र एंड पिन टू टास्क बार। अगर पिन टू टास्क बार कर दोगे तो वो हमेशा के लिए आपके टास्क बार पैन में, जो कि क्विक लॉन्च आइकॉन कहलाता है, उसमें वो आ जाएगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं, नाउ द अनदर मेथड दैट इज just go to the start button. There is all program option, and into the all program option there is a Google Chrome option. So you need to just click on the Google Chrome option, then the Chrome will be appear into your screen. The another one, that means that is into the start button you have a search button option. Just write the Chrome into the search bar, then the Chrome will be appear into your pan. Just click on it and the Chrome or another browser will be appear into your screen. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ गूगल क्रोम विंडो। अब गूगल क्रोम विंडो का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है हम लोग उसे देखते हैं। सो देयर इज अ सम एड्रेस बार, रिफ्रेश बटन, बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, tabs like a new button, tabs, etc. So address bar that contains the address of the website, that contains the URL of the website, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो जो आपका एड्रेस बार होता है वहाँ पे आप लोग डालते हो जो कि URL कंटेंट किए हुए होता है, लाइक www.gmail.com। सो www.gmail.com that is a URL that contains the address bar। सो एड्रेस बार में वो google.com या gmail.com जो भी आप ओपन करते हो वो आपके एड्रेस बार में होता है। नाउ रिफ्रेश बटन इन जनरली यूज टू रिफ्रेश योर साइट, लाइक अ रीलोड योर साइट। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, साइट नहीं ओपन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम, कोई ऐसा कंटेंट है जो हाइड हो रहा है, तो दैट टाइम यू नीड टू जस्ट रिफ्रेश बटन, वो फिर से एक बार रीलोड हो जाएगा, फिर से एक बार रीलोड होकर अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। नाउ बैक बटन इज जनरली यूज टू बैक द फ्रंट साइड। दैट मीन्स कि अगर आप जो आपके जैसे जैसे 1 बाई 1 स्टेप आप बैक जाते हो, जैसे आप बैक बटन क्लिक किया तो आप साइड से 1 स्टेप बैक गए, जैसे आपने साइट खोला और खुलते ही आपके पैनल पे होम बटन आएगा या होम स्क्रीन, आप होम पेज जिसे बोल सकते हो, और उसके बाद आप उसके कॉन्टैक्ट्स में गए, ठीक है। अब वहाँ से चाहते हो आप बैक जाएं, तो अगर आप बैक बटन प्रेस करोगे तो 1 बाई 1 स्टेप आप पीछे चलते आओगे। जितना आप आगे बढ़े हो उतना आप 1 बाई 1 पीछे चले आओगे। फॉरवर्ड बटन, फिर से वही पीछे आए हुए स्टेप को जस्ट आप 1 बाई 1 आगे जा सकते हो। ये जनरलाइज आप इससे कंपेयर कर सकते हो अंडो और रीडो से। दैट मीन्स गो टू द प्रीवियस एंड गो टू द लास्ट वन, ठीक है। तो ये उसी टाइप का बैकवर्ड और फॉरवर्ड है। तो टैब क्या होता है? टैब दैट मीन्स इन अ सिंगल ब्राउजर यू कैन जस्ट ओपन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट इनटू अ सिंगल ब्राउजर। सो वहाँ पे एक टैब का ऑप्शन होता है, आप देखोगे जब आप इसके आप पिक्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पे टैब का ऑप्शन है, न्यू टैब है, ठीक है। तो ये जो टैब है इसके थ्रू हम लोग अगर चाहते हैं एक ही ब्राउज़र पे कुछ और वेबसाइट ओपन करें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हो, तो वहाँ पे न्यू टैब का ऑप्शन होता है। उस न्यू टैब के ऑप्शन से आप नए नए पैनल खुलेंगे, नए नए विंडो खुलेंगे, आप उसके थ्रू नए नए वेबसाइट को सर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने हर चीज़ क्लियर कट वे में बता रखी है, सो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा अभी नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इससे आगे। अभी तक जिसको जो भी प्रॉब्लम हुआ है वो सब लोग पूछ रहे हैं और आगे भी पूछेंगे। कोई भी हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, कॉल करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप इजीली बिना कोई झिझक के आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सारे प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉर्ट आउट होंगे। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू। आज के लिए बस यही, स्टे होम एंड स्टे सेफ।